We welcome you to this program on the occasion of the 146th birth anniversary of Rabindranath Tagore. Honorable Shri Parag Shukla, Professor Parak, respected directors of schools, heads of divisions, faculty members, and other guests who have assembled at the MPC studio. Also, our colleagues at the regional centers, artists, speakers, and guests who have assembled at different regional centers of IGNOU, ladies and gentlemen. Today we are observing the 146th birth anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore. At this juncture, I request Professor Parak to hand over a bouquet of flowers to our chief guest, Shri Parag Shukla. Exactly 146 years before Gurudev Rabindranath Tagore was born in the Jorashankar Thakurbari of Kolkata. We are observing his birth anniversary today in a unique manner. So far, we have been doing this locally at Tagore Bhavan at our academic complex. But this time, we are using the Gyan Darshan 2 channel and the EduSat-based network for this function. Thereby, this program gets a national dimension. Several artists and speakers have arrived at different regional centers and sub-regional centers of IGNOU. We are eagerly waiting to listen to them. First, a special welcome to all of them. Along with them, we welcome our colleagues at the regional centers. Last but not the least, we welcome all the dignitaries and guests present. For this function, we contacted all the regional centers and we were overwhelmed by the response. Quite a few centers will be participating. Rabindranath Tagore was a multifaceted genius, the like of which one rarely comes across. Poet, dramatist, actor, novelist, story writer, essayist, philosopher, educationist, composer of music, and last but not the least, an outstanding painter. The only other versatile person one can think of in this context could be the Italian Leonardo da Vinci. A man of amazing creative efflorescence with so many facets to it that it is difficult to say which one is the more important. He has left behind him a corpus of work that is awe-inspiring and almost incredible. Tagore used to remark that even if all of his other work was forgotten, his songs will last. About 3,000 of them set to music by himself or under his close supervision, thereby creating an entirely new music compounded European classical, Indian classical, and Bengal folk music. We now take you to Patna, where Srimati Reena Sinha will sing the opening song, Ananda Dhara Bahiche Bhuvane. She will be assisted in harmonium by Sri Sanjay Bhattacharya and in tabla by Sri Ramakrishna. Tagore was a strong believer in the intrinsic values of nature. The beauty of nature is the gift of God, and such gifts are presented by the nature in abundance. This song has been influenced by the Solitude of Alexander Salker of William Cooper, where he mentions society, friendship, and love are divinely bestowed upon a man. Tagore appeals to everybody to shed selfishness and get mingled with the eternal joy of nature. In this particular song, puja and prakriti, that is worship and nature, get integrated.
Well, that was wonderful, very soothing, like nature itself. We thank Srimati Sinha, Sri Bhattacharya and Sri Ramakrishna. We now go over to Lucknow, where Srimati Madhavi Bandyopadhyay will talk about the songs of Rabindranath. डायस पर बैठे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का 147वां जन्म जयंती है और मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वैसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रविंद्रनाथ के विशाल कर्म कांड की ओर आज मैं नहीं जाऊंगी। आज केवल उनके संगीत के ऊपर मैं थोड़ा आलोचना करने जा रही हूँ, क्योंकि ये संगीत भारतीय संगीत जगत की रविंद्र संगीत एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और गीतांजलि के ऊपर ही उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि का सबसे पहला गाना मैं हिंदी में अनुदित करके 2 लाइन बोल रही हूँ। मेरे शीश को नत कर दो तुम निज चरण रज के तल में, अहम को डुबो दो मेरे नयनाश्रु के जल में। ये जो रविंद्रनाथ अपने गीतों को लिखा, साथ ही साथ उसकी स्वरलिपि बनाई, उसको तालबद्ध किया। उनकी जो स्वरलिपि है वो रागों पर आधारित है। राष्ट्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत पर आधार करके उन्होंने अपने गीतों को बनाया, स्वरलिपि को बनाई और उसमें एक अलग ही व्यंजना भर दी जो रविंद्र संगीत को एक वैचित्र प्रदान कर दिया। भारतीय संगीत जगत में ये अपने में एक स्वतंत्र विधा बन गई। अगर कहीं भी रविंद्र संगीत गाया जाता है तो फौरन वहां एक अलग ही परिवेश छा जाता है और कोई भी सुनेगा तो कह देगा कि हाँ, रविंद्र संगीत गाया जा रहा है। इसीलिए रविंद्र संगीत हमारे भारतीय संगीत में एक स्वतंत्र विधा है। जहां तक रविंद्र संगीत की विशेषता है, इसमें भावों की अभिव्यक्ति हृदय से की जाती है और साथ ही अगर गीतों में आत्मा का झलक ना आए तो रविंद्र संगीत नहीं रहती है। इनके रविंद्र संगीत को कई भागों में बांटा जा सकता है। पर्वों में प्रेम पर्व, पूजा पर्व, प्रकृति पर्व, भानु सिंह की पदावली, बाउल संगीत, ये सारे। भानु सिंह की पदावली की एक छोटा सा उदाहरण, ये एक स्पेशल भाषा में लिखा गया है। मरण रे तुह मम श्याम समान, चिर विशरल जब निरदय माधव, तुह न भई बिमम बाम। ये रविंद्रनाथ का भानु सिंह की पदावली है। और बाउल संगीत जो है वो बाउल दर्शन के ऊपर आधारित है, उसको उन्होंने लिखा और इसकी प्रेरणा उन्होंने लालन फकीर से ली। रविंद्र संगीत में एक खासियत यह है कि इसमें गीतों में जो संबोधन है वो साथ ही साथ मानव के प्रति भी होता है और ईश्वर के प्रति। इसी की वजह से जो है प्रेम और पूजा एकाकार हो जाता है। जो देश में जो इनके जो देशात्मबोधक गाने हैं, उसका जो मैं सबसे पहले जब बंग भंग आंदोलन हुआ था तो उस समय इन्होंने देशात्मबोधक गानों को, संगीतों को रचना की, गाया और पूरे समाज को हिला कर रख दिया। और साथ ही साथ इनकी जो बाउल संगीत है वो एक भक्ति मार्ग की तरफ हमें ले जाती है। रविंद्र संगीत के जो मौसम का प्राधान्य उन्होंने बहुत अधिक दिया। रविंद्र संगीत में प्रकृति, रविंद्रनाथ का मानना था कि प्रकृति का सीधा संबंध मानव मन से है एवं मानव मन तो मौसम के साथ साथ उनकी भावनाओं में परिवर्तन आता रहता है। ये रविंद्र संगीत की एक खासियत है। मौसम पर उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे। एक चीज ये भी एक मतलब कहने वाली बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जो है 2 देशों का नेशनल एंथम उन्होंने लिखा। बांग्लादेश जिसका नेशनल एंथम है अमर सोनार बांग्ला आमी तुम्हें भालोबासी, और भारत का जो नेशनल एंथम है वो तो हम सभी लोग जानते हैं। तो इसलिए जो है हम ये कहना चाहेंगे कि रविंद्र संगीत की जो संगीत सुधा है ये केवल बंगभाषी तक ही सीमित न रहे। केवल बंगभाषी इसे पान क्यों करेंगे? अगर हम चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में हिंदी बलय में इसको अनुवाद के जरिए स्वरलिपि समेत हिंदी संगीत का अनुवाद, रविंद्र संगीत का अनुवाद करके इसको अनायास भी हिंदी भाषियों के लिए भी हम लोग तैयार कर सकते हैं। और मैंने ये दुस्साहस किया है और ICCR ने मेरी इस कृति को
स्पॉन्सर भी किया है, जिसका मंचन हो चुका है। कितना कहें, जितना भी कहें, संगीत के बारे में कम रहेगा, तो समय की भी कमी है। मैं इतनी सी बात कह के अपने वाणी को लगाम दे रही हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती बंदोपाध्याय। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रविंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व व कृतित्व के सूक्ष्म विवेचन के लिए हम श्रीमती बंदोपाध्याय के आभारी हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री प्रयाग शुक्ल हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान हैं। हम आपको सुनने के लिए आतुर हैं। मैं प्रोफेसर पारख से श्री प्रयाग शुक्ल जी का परिचय देने का अनुरोध करती हूँ। प्रयाग जी का नाम हिंदी साहित्य के सभी सुधी पाठकों के लिए अपरिचित नहीं है। पिछले 5 दशकों से उनके लेखन से हिंदी जगत परिचित है। प्रमुख रूप से कवि, कथाकार, लेकिन साथ ही साहित्य और कला के बहुत बड़े समीक्षक हैं। इसके साथ ही प्रयाग जी ने लंबा समय जो है पत्रकारिता में गुजारा है। हिंदी के पाठकों को याद होगा कि हिंदी की एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका दिनमान से आप जुड़े रहे हैं, बाद में नवभारत टाइम्स से, और अभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की विख्यात पत्रिका जो रंग पत्रिका है, रंग प्रसंग, उसके संपादक हैं। प्रयाग जी न केवल कवि और कथाकार हैं, बल्कि जैसा कि आप हिंदी के पाठक जानते होंगे कि आपका जन्म बंगाल में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। हालांकि रहने वाले आप उत्तर प्रदेश के हैं और शिक्षा दीक्षा का काफी हिस्सा बंगाल में बीता है। बंगाल के साहित्य से, बंगला साहित्य से आपका गहरा लगाव रहा है। हिंदी में बंगला साहित्य को लाने के लिए आपका योगदान हमेशा याद किया जाता रहेगा। बंकिम चंद्र के निबंधों का अनुवाद आपने किया था, जो नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित हुआ और साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी हुआ। इसी के साथ साथ आपने रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि का भी अनुवाद किया है। हिंदी में वैसे गीतांजलि के अनुवाद कई हुए हैं, लेकिन अभी प्रयाग जी द्वारा जो अनुवाद हुआ है वो निश्चित रूप से अनुवादों की परंपरा में शायद हिंदी में सर्वश्रेष्ठ अनुवाद है। तो मैं प्रयाग जी से अनुरोध करूंगा कि वो रविंद्रनाथ ठाकुर के इस वर्ष जयंती वर्ष पर कुछ हमारे पाठकों को, हमारे दर्शकों को कहें। धन्यवाद पारख जी। जैसा कि सभी को लग रहा है, जितने वक्ता अभी बोल चुके हैं, रविन्द्रनाथ की प्रतिभा के इतने रूप हैं, इतने पक्ष हैं कि बराबर ये लगता है कि कहाँ से शुरू करें अगर उन पर बात करनी है तो। क्योंकि जैसे भी कानन शर्मा जी याद कर रही थी कि वो कवि थे, नाटककार थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, चित्रकार थे, और कोई भी विधा उन्होंने छोड़ी नहीं, अभिनय भी किया। अब आप देखें तो जिस व्यक्ति के, जिस लेखक के इतने रूप हों, वो एक सचमुच महासमुद्र है। रविंद्र साहित्य, रविंद्र जीवन, और हम सब जानते हैं कि इतना लिखा गया है रविन्द्रनाथ ठाकुर पर। स्वयं उन्होंने इतना लिखा और उन पर इतना लिखा गया है कि एक जन्म में तो उसको पढ़ पाना, उसका पूरा आनंद उठा पाना बहुत कठिन है। इस नाते मैं अपने को इस मामले में भाग्यशाली मानता हूँ। जैसा अभी पारख जी ने बताया कि मेरा जन्म ही कलकत्ता में हुआ। संयोग से हम रहे भी ऐसे मोहल्ले में, पाड़ा कहते हैं बंगला में, जो बंगला भाषियों का था। तो शायद बहुत कम उम्र में ही, जब 8-10 बरस का रहा होऊंगा, तब से रविंद्र का संगीत, उनके गीत कानों में पड़ने शुरू हुए थे। और वो भी एक कारण रहा होगा कि आगे चलकर ये इच्छा पैदा हुई मन में कि रविन्द्रनाथ की रचनाओं से कुछ अनुवाद करूं। जो उनके बारे में कहने की बात लगती है, सोचने की बात लगती है, वो तो यही है कि रविन्द्रनाथ के साहित्य से हम जैसे बहुतेरे पाठकों को प्रकृति कुछ और रूप में दिखने लगी। ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको। गीतांजलि को पढ़ते हुए, उनकी अन्य रचनाओं को पढ़ते हुए, उपन्यासों, नौका डूबी जैसा उपन्यास हो, और वो उनके वो दिन जब वो अपनी, जो उनकी जमींदारी थी परिवार की, सिलाई दह में, जब वहाँ वो रहने के लिए गए कुछ बरस, और जब एक नाव पर ही रहते थे, और वहाँ उन्होंने जिस तरह से बंगाल की प्रकृति को देखा, और उसको फिर वो अपनी रचनाओं में, ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं लाए, वो सहज ही आया। और इस तरह से आया कि आप ये देखिए कि मेघ हो, नदी हो,
फल फूल हों, सब उनके यहाँ आते चले गए और कुछ इस तरह आते चले गए कि उसमें से ही उन्होंने प्रकृति की एक बड़ी सत्ता, ये कभी रविन्द्रनाथ ने जो सगुण निर्गुण का विचार रहा है हमारे भारतीय साहित्य में, उसमें वो इतना नहीं पड़े। गीतांजलि भी आप देखिए तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि किसी एक जगह एक शब्द आता है भगवान, उसके अलावा वो किसको संबोधित है, वो प्रकृति से बड़ी किसी सत्ता को संबोधित है, जहाँ हम ये देखते हैं कि प्रकृति के तमाम चित्रों के बहाने उस सत्ता की बात वो करते हैं। यही बात हम रविन्द्रनाथ के चित्रों में देखते हैं और उनका वो आप देखिए तो एक ऐसा रूप है जो देखा रहा, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर है कि उनके साहित्य की तुलना में उनकी चित्रकला की दुनिया कुछ उतनी नहीं जानी जाती जितनी इसको जाना जा सकना चाहिए था। अभी आपने कुछ छवियां देखी उनके चित्रों से, उनमें भी आप पाएंगे कि रविन्द्रनाथ वहाँ क्या कर रहे हैं। पक्षी हैं, फूल हैं और ऐसे प्रकृति के बहुत सारे रूप हैं जिनको वो कुछ अपने उन चित्रों में इस तरह से लाते हैं कि आप उनको बहुत देर तक देखते जा सकते हो। यहाँ राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में जो उनके चित्र हैं, एक कमरे में बहुत सारे हैं और मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ और पाता हूँ कि मैं वहाँ बहुत बहुत देर तक रुकता हूँ। उनमें क्या है, जैसे एक चित्र है उनका, शाम के समय का चित्र है और कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ पेड़ हैं और वो एक विस्तार है, एक जमीन है खाली सी और संध्या का समय है, उसके कुछ अपने रंग हैं। अब उसको आप कितनी बार भी देखिए, उसमें बराबर कुछ नए अर्थ, कुछ नई छवियां उसमें से आपको निकलती हुई लगती हैं। रविन्द्रनाथ ने जो चित्रकला शुरू की थी, हम सब जानते हैं कि बहुत बाद के वर्षों में, जब अपना बहुत सारा लेखन कार्य वो कर चुके थे और तब वो चित्र बनाने के लिए कुछ ऐसे उतावले भी हुए थे कि उन्होंने शुरू में तैल रंगों में भी काम करना चाहा कैनवस पर वो तैल रंग आप जानते हैं सूखने में देर लगती है, तो कुछ ऐसी व्यग्रता थी, ऐसी आकुलता थी इन चित्रों में कुछ कहने की कि उन्होंने अपने रंग बनाने शुरू किए और रंग बनाने शुरू किए और फिर उस जैसा कि होता है, कुछ चाय की पत्ती हो, कुछ और फल फूल हो, उनसे रंग बनाए, कुछ मिनरल कलर्स, अर्थ कलर्स, और कागज पर बहुत सारा काम किया। वो बहुत अद्भुत है और ये मैं इसकी याद कभी इसलिए नहीं भूल पाता, मतलब उनके इस चित्र संसार की, क्योंकि वहाँ रविन्द्रनाथ का वो उदात्त रूप नहीं दिखता। वहाँ बहुत गहरी बेचैनी है, कुछ उत्कंठा है, कुछ एक ऐसे मन में उनके ऐसी चीजें चल रही हैं जिनका सरल समाधान खुद उनको नहीं मिल रहा। क्योंकि ये तो हुआ है और माना ही जाता है और ठीक माना जाता है कि अपने साहित्य में रविन्द्रनाथ बराबर मनुष्य को, मानुख को ऐसी प्राथमिकता देते हैं और उसके उदात्त रूप के, उसके करुणामय रूप के, उसके संवेदना वाले रूप के, उसके साहस वाले रूप की तरह तरह से उसका गान करते हैं, गद्य में भी और पद्य में भी। पर चित्र में ऐसा नहीं है। पर इसका मतलब नहीं है कि वहाँ पर कोई आपको ऐसी जगह ले जाकर छोड़ रहे हैं जहाँ केवल एक तरह का त्रास है और निराशा है और केवल दुख है, वैसा नहीं है। इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि इस बात को भी कहीं देखने की ज़रूरत है कि रविन्द्रनाथ किस तरह से एक व्यक्ति के रूप में भी कितनी तरह से हमको दिखाई पड़ते हैं। एक बात और याद करना चाहता हूँ, अभी आपने देखी जोड़ा साकू वाले उनके मकान की छवियाँ। वहाँ मैं जब भी कलकत्ता जाता हूँ अब भी, तो वहाँ बिना जाए नहीं रहता और बराबर इसको भी देखता हूँ और ऐसा ही पाता हूँ कि रविन्द्रनाथ को बनाने में ठाकुर परिवार का जो योगदान है उसको हम नहीं भुला सकते, क्योंकि उनके भाई ज्योतिरिंद्रनाथ जो स्वयं बहुत अच्छे चित्रकार थे, उनका पूरा परिवार, और मंगला में ऐसी किताबें हैं कि ठाकुर बाड़ी को लेकर हैं, परिवार की महिलाओं को लेकर हैं, तो वो पूरा एक संसार है। और जब हम रविन्द्रनाथ को याद करते हैं तो
इसको जरूरी मानते हैं हम जैसे लोग कि उस उत्सव को भी याद करें। आज भी आप वहाँ जाएं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कैसे वो लोग कहाँ बैठकर नाटक करते थे, कहाँ बैठकर चित्र बनाते थे, उस सब की आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि वो संग्रहालय भाग्यवश बहुत अच्छी तरह रखा गया है। हमारे देश में ऐसे कम संग्रहालय हैं। वो पूरा का पूरा जो भवन है वो लगभग जो कहते हो है, एक तरफ रविंद्र भारती है जो विश्वविद्यालय है और एक तरफ वो सारे कक्ष हैं जहाँ वो परिवार रहता था। फिलहाल मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद सर। हम आपके सारगर्भित विवेचन के लिए आपके आभारी हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम पुनः आपको सुनने का अनुरोध करेंगे, लेकिन अभी हम आप सबको ले चलते हैं सिलीगुड़ी, जहां पर हम सुनेंगे श्रीमती ऋतुपर्णा दत्ता से एक मधुर गीत, यदि प्रेम दिले ना प्राणी। तबले पर उनके साथ हैं डॉक्टर असित बरन मंडल। तो आइए चलते हैं सिलीगुड़ी। যদি প্রেম দিলে না প্রাণে কেন ভরে আকাশ ভরে দিলে এমন গানে গানে যদি প্রেম দিলে না প্রাণে কেন তারার মালা গাঁথা কেন ফুলের শয়ন পাতা কেন তারার মালা গাঁথা কেন ফুলের শয়ন পাতা কেন দক্ষিণ হাওয়া গোপন কথা জানাই কানে কানে যদি প্রেম দিলে না প্রাণে যদি প্রেম দিলে না প্রাণে কেন আকাশ তবে এমন চাওয়া যায় এ মুখের পানে যদি প্রেম দিলে না প্রাণে তবে খানে খানে কেন আমার হৃদয় পাগল হেন তবে খানে খানে কেন আমার হৃদয় পাগল হেন তোরি সেই সাগরে ভাষায় যাহার ফুল সে নাহি জানে যদি প্রেম দিলে না প্রাণে কেন ভোরে আকাশ ভোরে দিলে এমন গানে গানে যদি প্রেম দিলে না প্রাণে। Well, that was a beautiful rendering of the theme of celebration of love in its different manifestations. We thank you, Srimati Dotto and Dr. Mondal. Now we take you over to Kolkata, where perhaps at every home and every corner, Tagore's anniversary is being observed today, and I'm sure the enthusiasm there is quite unbounded. We shall be having two recitations from Kolkata by Sri Jagannath Bose and Dr. Shukla Dotto. Sri Bose will recite Bharat Tirtha, where Tagore describes India as a pilgrimage where people from various parts of the world have congregated with diverse cultures, traditions, but also have got integrated under one banner, Kafle Baste Gaye, Hindustan Banta Gaya. This poem was first published in the journal called Probashi
and was named Matri Obhishek, which means homage to mother. The poet himself described it as the message of his famous novel Gora, where he depicts the triumph of humanity over the disquiet and qualm created by diversities in religion. The poem to be recited by Dr. Shukla Datto is entitled Kripon, which means miser. Like several other poems of Tagore, it has multiple interpretations. Primarily, happiness is sought after by every human being, and in pursuit of that, we expect all its aspects to be forthcoming. We forget that the seeker of happiness has not only got to take, but to give as well, and give in an unmiserly manner, even at the cost of exhausting one's own treasure of wealth, knowledge, prowess, and virtues. Ladies and gentlemen, we have the pleasure to go over to Kolkata. হেমর চিত্তপূর্ণ তীর্থে জাগরে ধীরে এই ভারতের মহামানবে সাগর তীরে হেথায় দাঁড়ায় দুবাহু বাড়ায় নমি নর দেবতারে উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তারে হেন গম্ভীর এই যে ভূধর নদী জপমালা ধৃত প্রান্তর হেথায় নিত্য হেন পবিত্র ধরিত্রীরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হতে সমুদ্রে হলো হারা হেথায় আর্য হেথা অনার্য হেথায় দ্রাবিড় চীন সকুন্দল পাঠান মোগল এক দেহে হলো লীন পশ্চিম আদি খুলিয়াছে দ্বার সেথা হতে সবে আনে উপহার দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে গণধারাবাহী জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত যারা এসেছিল সবে তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে কেহ নহে নহে দূর আমার শুনিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর হে রুদ্র বীণা বাজো 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 ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজো বন্ধ নাসিবে তারাও আসিবে দাঁড়াবে ঘিরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে এটা একদিন বিরামবিহীন মহা ওঙ্কার ধ্বনি হৃদয় তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণী তপস্যা বলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া বিভেদ ভুলিল জাগায় তুলিল একটি বিরাটিয়া সেই সাধনা সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা দিদার হেঠায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে সেই হোমানলে হ্যারো আজি জলে দুঃখের রক্ত শিখা হবে তা সহিতে মর্মে তহিতে আছে সে ভাগ্যে লিখা এ দুঃখ বহন কর মোর মন শোনোর একের ডাক যত লাজ ভয় করো করো জয় অপমান দূরে যাক দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান জন্ম লোভিবে কি বিশাল প্রাণ পোহায় রজনী জাগিছে জলনী বিপুল নীড়ে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে এসো হে আর্য এসো অনার্য হিন্দু মুসলমান এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ এসো এসো খ্রিস্টান এসো ব্রাহ্মণ সূচি করি মন ধরো হাত সবাকার এসো হে পতিত হোক অপনীত সব অপমান ভার মার অভিষেকে এসো এসো তরা মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নিরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেন গ্রামের পথে পথে তুমি তখন চলেছিলে
তোমার স্বর্ণরথে। অপূর্ব এক স্বপ্ন সম লাগতেছিল চোখে মম। কি বিচিত্র শোভা তোমার, কি বিচিত্র সাজ। আমি মনে ভাবতেছিলেন এ কোন মহারাজ। আজ শুভক্ষণে রাত পোহালো, ভেবেছিলেন তবে আজ আমারে দ্বারে দ্বারে ফিরতে নাহি হবে। বাহির হতে নাহি হতে কাহার দেখা পেলেন পথে। চলিতে রথ ধন ধান্য ছড়াবে দুই ধারে। মুঠা মুঠা কুড়িয়ে নেব, নেব ভারে ভারে। দেখি সহসা রথ থেমে গেল আমার কাছে এসে। আমার মুখ পানে চেয়ে নামলে তুমি হেসে। দেখে মুখের প্রসন্নতা জুড়িয়ে গেল সকল ব্যথা। হেন কালি কিসের লাগি তুমি অকস্মাৎ আমায় কিছু দাও গো বলে বাড়িয়ে দিলে হাত। মরিয়ে কি কথা রাজাধিরাজ, আমায় দাও গো কিছু। শুনে ক্ষণকালের তরে রইনু মাথা নিচু। তোমার কি দাভাব আছে ভিখারি ভিক্ষুকের কাছে। এ কেবল কৌতুকের বশে আমায় প্রবঞ্চনা। ঝুলি থেকে দিলেন তুলে একটি ছোট কণা। যবে পাত্রখানি ঘরে এনে উজাড় করিয়ে কি ভিক্ষা মাঝে একটি ছোট সোনার কণা দেখি। দিলেন যারাজ ভিখারি রে স্বর্ণ হয়ে এলো ফিরে। তখন কাঁদে চোখের জলে দুটি নয়ন ভরে। তোমায় কেন দিইনি আমার সকল শূন্য করে। Thanks to Mr. Bose and Dr. Datta, we know that Tagore was quite original in his thoughts on education. By creating Shantiniketan, he has promoted openness of learning in that era. We shall hear from Mr. T. Rajesh from Karnal about Tagore's thoughts on education. Over to Karnal. Respected dignitaries at the headquarters and other colleagues at the regional center and my dear friends. It is a matter of immense pleasure and privilege for us at Regional Center Karnal and for me personally to make this presentation on this auspicious occasion of the Jayanti of the great poet laureate Rabindranath Tagore. On this solemn occasion, I am presenting my views on the topic, the relevance of Tagore's views on education in the current context. Gurudev considered the process of acquiring education as a bountiful experience. He once stated, "The goddess of riches is careful because her accumulations are limited by quantity. They are lost when spent. And the goddess of learning is lavish because her wealth does not depend on the accumulation but grows as it overflows." He identified the lack of basic education as fundamental cause of many of India's social and economic afflictions. He once stated, "In my view, the imposing tower of misery which today rests on the heart of India has its sole foundation in the absence of education. Caste divisions, religious conflicts, aversion to work, pernicious economic conditions all center on this single factor alone." His own co-educational system, which he developed so well at Shantiniketan, had many progressive features. The emphasis here was on self-motivation rather than on discipline, and on fostering the intellectual curiosity rather than on competitive excellence. At Shantiniketan, there were strong local elements in its emphasis on Indian tradition, including the classics, and in the use of Bengali language rather than English as the language for instruction. At the same time, there were courses on a great variety of cultures and study programs devoted to such areas as China, Japan, and the Middle East. Many foreigners came to Shantiniketan to study or to teach, and the fusion of work
and studies definitely seemed to work. Gurudev had an open mind on education. To encourage mutuality, Rabindranath invited artists and scholars from across the world and of course from across the length and breadth of the country, India, to Shantiniketan on a daily basis to share their cultures at the Vishwabharati. The main aspects of his education were to study the mind of man in its realization of different aspects of truth from diverse points of view, to bring into more intimate relation with one another through patient study of research the different cultures of East on the basis of their underlying unity, to approach the West from the standpoint of such a unity of the life and thought of Asia. He considered it essential to assimilate the best of both the East and the West. For instance, on the issue of the use of English language, he advocated its use not only because of its practical usefulness as a means of livelihood, but also because it was the vehicle for Western science and technology. However, he was also for the judicious use of Indian languages in streams of study, since once one assimilated the subject matter better if it was provided in one's own language. In terms of curricula, he advocated a different system of teaching. Rather than studying national cultures for the vast one and cultural dominance imposed, he advocated the teaching system that analyzed history and culture for the progress that it had made in breaking down social and religious barriers. Such an approach emphasized the innovations that had been made in integrating individuals of diverse backgrounds into a larger framework and in devising the economic policies which emphasized social justice and narrowed gap between the rich and the poor. Gurudev was for mass university education. He once stated, "All this while our universities, poorly equipped, scantily respected, lacking encouragement, had been plying monotonously like ferry boats carrying handful of students over meager subjects set for their examinations." This, according to him, negatively affected the society. As is clear from his views, the views of the great, the one and only Gurudev Rabindranath Tagore hold great relevance to the educational system at large and for distance education in particular, because our aim as his own was to reach the unreached. It is for us to try and imbibe the spirit of Gurudev in ourselves and to elevate our system so that we can make the world a better place to live in. I would like to end with a Sanskrit verse which is so very typical of Rabindranath Tagore himself. Nakshatra Taragraha Sankulapi Jyotishmate Chandramasi. There is only one moon among all the stars that you can have around in this universe. Similarly, for the soothing comfort of the human soul, you have none other in a betterly placed position than the writings of the great and the one and only Rabindranath Tagore. Thank you so much for your patient hearing, one and all. Thank you once again. Thank you, Mr. Rajesh. That was indeed very refreshing. We again come back to the AMPC studio and we request once again Shri Prayag Shukla to deliver the second part of his talk, sir. ये पिछले साल की ही बात है। मैं त्रिपुरा अगरतला गया हुआ था और आप लोगों में से बहुतेरे जानते होंगे कि रविंद्रनाथ का एक बड़ा घनिष्ठ संबंध वहाँ के राज परिवार से रहा था। वो कई बार त्रिपुरा जाते थे, अगरतला में जिस जगह ठहरते थे वो मकान देखकर मैं आया और सुबह मैं भी वहाँ, संयोग ये था कि जहाँ मैं ठहरा था जिस अतिथि निवास में, गेस्ट हाउस में, उससे बहुत पास थी वो जगह। तो मैं रोज़ ही वहाँ जाता था सुबह टहलते समय और देखा करता था, सोचा करता था कि रविंद्र यहाँ आए होंगे, यहाँ वहाँ बैठकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी लिखी। तो वो एक वो छोटी सी पहाड़ी पर, बल्कि टीला उसको कहें, वो मकान है राजभवन छोटा सा, जिसका पुनरुद्धार भी कराया जा रहा है। और फिर थोड़ा बहुत घूमा भी त्रिपुरा में, अंदर की तरफ भी गया गाँव में। तो ये बंगाल के गाँव, ये पूरा जो ये त्रिपुरा के गाँव और वहाँ की प्रकृति और जल और नदियाँ, पेड़ और
केवल वही के नहीं, फिर मैंने ये धीरे धीरे ये भी पहचाना है जब इन रचनाओं का अनुवाद कर रहा था उनकी, और संयोग देखे कि वो कुछ मेरे भी एक तरह से भारत भ्रमण का दौर था। मैं एक प्रसंग में लगभग पूरे भारत का दौरा कर रहा था, दौरा कहना गलत है, यात्रा कर रहा था, और यात्रा के दौरान ही मैंने ये अनुवाद किए। और मैं आपको बताऊं कि हर जगह, ट्रेन की खिड़की पर बैठे हुए, कहीं किसी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए, कन्याकुमारी के तट पर जहाँ मैं कुछ दिनों के लिए गया था, और संयोग ये कि फिर मैंने जो चित्र चुना गीतांजलि के अपनी इस पुस्तक के लिए, अनुवादों वाली पुस्तक के लिए, उसमें कन्याकुमारी का ही एक चित्र चुना, सागर तट का। तो ये जो बात मैंने कही थी कि वो कैसे प्रकृति से हमको एक अलग तरह से हमारी भेंट कराते हैं। और 2-3 पंक्तियां आपको अपनी भूमिका में से सुनाना चाहता हूं कि गीतांजलि को मैंने कैसे देखा और समझा है। गीतांजलि अपने गीतों में प्रकृति से भी बड़ी किसी सत्ता की बात तो करती है, प्रकृति के भी रचयिता की बात, पर वह ऐसा करते हुए प्रकृति उपकरणों का ही सहारा लेती है और एक प्रकार से प्रकृति काव्य का भी दर्जा हासिल कर लेती है। और उस बड़ी सत्ता की जो छवियां वह प्रस्तुत करती है, उसकी जो झलकियां हमें देती है, वे सारी झलकियां मिलकर हमारे प्रकृति अनुभव को भी बड़ा करती हैं। इन छवियों में मानो सगुण निर्गुण का विचार छोड़ दिया गया है और अंत में मनुष्य के अंतर्लोक से उस बहिर्लोक को जोड़ दिया गया है, जो कई कई रूपों में हमारे सम्मुख सब समय पसरा रहता है। यहाँ सामाजिक लोक या सांसारिक लोक की भी एक अहम भूमिका है। बहुतेरे आध्यात्मिक अनुभवों के लिए सांसारिक प्रतीकों और रूपकों का ही भरोसा किया गया है और उनसे एक अनोखी चित्रमयता भी प्राप्त की गई है। इस तरह रविंद्रनाथ की गीतांजलि 3 क्षितिजों पर खुलती है, प्रकृति दृश्यों के क्षितिज पर, साधारण सांसारिक जीवन के क्षितिज पर और उस अंतरलोक के क्षितिज पर, जहां इनके मेल से मानवीय और आध्यात्मिक अनुभव कई कई शक्लों में प्रकट होकर अंततः एक शांति और मधुरता में पर्यवसित होते रहते हैं। अब मैं आपको कुछ अनुवाद सुनाऊंगा। आपको बता दूं कि ये सब मैंने बंगला से ही किए हैं, और जब इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ गीतांजलि में, मेरी अनुवाद की इस पुस्तक का, तो मैंने ये भी सोचा कि मैं एक तरफ साथ साथ अपने अनुवादों के बांग्ला मूल भी नागरी लिपि में दे दूं, जो इस पुस्तक में है। तो अब मैं आपको एक कविता सुनाता हूं और ये भी बता दूं कि रविंद्रनाथ ने जब गीतांजलि का अनुवाद किया 103 गीतों का, पदों का अंग्रेजी में, तो उन्होंने उसके शीर्षक नहीं दिए। अंग्रेजी गीतांजलि में आप पाएंगे कि संख्याएं हैं, 103 की संख्या है, और जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जो रचना, वो 21वीं है। बांग्ला में ये इस तरह से है, शुरू की 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। एबार भाषिए दीते होवे अमार এই तोरी, अब तरी तिरादू लहरों पर, क्या इसको देगा तीर भला, मैं भी हूँ नष्ट हुआ जाता, बीती जाती सारी बेला। आया वसंत भी चला गया, डालों पर कितने खिला फूल, अब सूखी डालों को लेकर क्या दोहराऊं फिर वही भूल। जल में उठती रह तरंग, सागर में उमड़ी है उमंग, पीले पत्ते तरु तरु से झर, वन में भरते अपना मरमर। तुम शून्य मना होकर उन्मन, हो ताक रहे किस ओर किधर, उस पार उठी है वंशी ध्वनि, दूरागत की वह वंशी ध्वनि, इस पार उठा यह गगन सिहर, यह पवन सिहर। और इसके बाद आपको सुनाता हूं एक और रचना उनकी, ये 22वीं है और बंगला में है। आजी श्रावण घन गहन मोहे, गोपन तब चरण फैले। आज जब छाए काले मेघ, निशासी नीरव रख पगचाप, कि सबकी आंखों से बचते चले आए हो तुम चुपचाप। प्रात में मूंद लिए हैं दृग, हवा की सुनता नहीं पुकार, सजग जो रहता है नभनील,
छिपा तम के पर्दे के पार, बंद हैं सभी घरों के द्वार, शांत बन कानन की गुंजार, अकेले पथ पर तुम ही पथिक कर रहे हो अपना संचार। अरे वो मेरे प्रिय वो सखा, द्वार मेरे घर का है खुला, लौटना तुम मत स्वप्न समान, रहा तुमको यह द्वार बुला। कहाँ आलोक करे आलोक, जलाओ विरहा नल से उसे, दीप तो है पर शिखा नहीं, भाग्य में है क्या लिखा यही, मरण इससे अच्छा है कहीं, जलाओ दीप विरह से ही। वेदना दूती गाती है, प्राण वो प्राण, जागते तुम हित हैं भगवान, रात में घिरता जब अंधियार, बुलाते करने को अभिसार, दुख दे रखते तेरा मान, जागते तुम हित हैं भगवान। गगन में बादल आए घिर, बरसता उनका जल झरझर, गहन यह रात तड़प कर प्राण, उठे हैं जाग अचानक आज, बताओ तो किसकी खातिर, चाहते हो ना न्योछावर। बरसता बादल जल झरझर, क्षणिक आभा लाती बिजली, रात फिर हो उठती गहरी, न जाने कहाँ दूर से इधर, चला आता सुर गहन गंभीर, खींचता है वह अपनी ओर, प्राण में भर देता है पीर। कहाँ आलोक अरे आलोक, जलाओ विरहा नल से उसे, कहीं हो जाए न तुमको देर, बुलाती हवा बुलाते मेघ, रहा वह सुर है तुमको टेर। निबिड़ यह निशा अंधेरी दिशा, जलाओ अरे प्रेम का दीप, प्राणपण से लाओ आलोक अरे आलोक। एक बात और कहना चाहता हूँ कि इसकी चर्चा अक्सर होती है कि रविंद्र संगीत के गीत काव्य को हिंदी में या दूसरी भाषाओं में ठीक उसी तरह उतारा जाए जैसे वो बांग्ला में है, उसको मैं असंभव चीज़ मानता हूँ। और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि वो न करने लायक काम है। प्रयोग करके आप देख सकते हैं, क्योंकि हर भाषा की अपनी एक प्रकृति होती है, हर भाषा का अपना एक मुहावरा होता है। और मेरा ये मानना है, मेरा ही नहीं बहुत लोगों का मानना है, कि जब किसी भाषा की कविता दूसरी भाषा में जाए तो उस भाषा की भी लगे। मूल का सार आप बचाएं, क्यों नहीं तो फिर बहुत गड़बड़ियां भी होती हैं, फिर पूरी तरह आता नहीं है। और इसको मत भूलिए कि जब रविंद्रनाथ ने अनुवाद किए अपनी ही कविताओं के और अंग्रेजी में किए तो इसका पूरा भान उनको था। उन्होंने लगभग गद्य में उसका अनुवाद किया, फ्री वर्स में। और रविंद्रनाथ के जो मूल बांग्ला गीत हैं, जो आप में से बहुतेरे जानते ही हैं, उनकी कोई छाया, उसका कोई स्पर्श अंग्रेजी का पाठक नहीं पा सकता। उसको जो मिलता है वो रविंद्रनाथ के विचारों का, उनके काव्य मर्म का सार मिलता है। स्वयं रविंद्रनाथ ने किया था, इसलिए मैं ये सचमुच मानता हूँ। और ये बात मैंने अपने बचाव में नहीं कही, चूँकि इसकी चर्चा अक्सर होती है इसलिए कही है। अब कितना समय है हमारे पास? एक गीत और सुना दूँ तो एक गीत मैं, गीतांजलि का जो अंतिम गीत है वो बांग्ला में जैसे लोग पढ़ते हैं वैसे मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। ये बहुत तीव्र गति से पढ़ने वाला गीत है, क्योंकि उसी तरह में लिखा गया, उसकी भंगिमा, उसकी मुद्रा वही है। एकटी नमस्कारे प्रभु एकटी नमस्कारे, इस तरह से वो शायद उसकी पूरी बात आती है, पर वो मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं उसको अपनी तरह से पढ़ता हूँ। नमस्कार वह एक प्रभु एक, सिमटे जिसमें देह लुटे वह तेरे इस संसार। नमस्कार वह एक, जैसे आता है सावन घन लिए घनी रसधार। नमस्कार वह विनत भाव त्यों आए पंख पसार, पहुँचे तेरे द्वार। विविध सुरों की आकुल धारा, नमस्कार वह भर ले आत्मदान का। नमस्कार वह सब गानों को हर ले, रख दे जाकर उन्हें जहाँ वह नीरव पारावार। सांध गगन में जैसे फिरते हंस लौटते निज घर। नमस्कार वह दिवस निशा का छूट चले त्यों सत्वर। प्राणों को ले उड़े अरे वो महामरण के पार। धन्यवाद।
आज जब हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में प्रकृति का दोहन करने पर तुले हुए हैं, गुरुदेव की यह प्रकृति संबंधी कविताएं आज हमें प्रकृति के संरक्षण व संरक्षण का संदेश सा देती हुई प्रतीत होती हैं। आपका पुनः हार्दिक धन्यवाद। अब मैं मानविकी विद्यापीठ के प्रोफेसर शत्रुघ्न कुमार से अनुरोध करती हूँ कि गुरुदेव की रचनाओं के बारे में हमें कुछ बताएं व कोमल मधुर गीतों के रससिद्ध गायक गुरुदेव की कविता हे मोर दुर्भागा देश का पाठ करें। शत्रुघ्न कुमार जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि गुरुदेव की जो कर्मस्थली रही वहाँ मैंने जिया है बरसों तक, और विश्व कवि की विचारधारा और उनका संदेश केवल उनके गीतों तक नहीं, उनके द्वारा गीतों पर आधारित नृत्यों तक नहीं, बल्कि सवार ऊपर मानुष्य तक है। कवि मानवता का संदेश देते हैं, और यही नहीं, वह हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि इस देश की जो संस्कृति है वह कायम रहे। हम ये जानते हैं कि हमारा देश जाति और धर्म पर आधारित है। हमारा समाज जहाँ जाति और धर्म बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और आज आए दिन जब हम देखते हैं कि गोहाना और खिलांजी जैसी घटनाएं घटती हैं, तो ऐसे समय में विश्व कवि का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। कवि एक और जहां अपना सर्वस्व निछावर कर गा उठते हैं, आमार माथा न तो कोरे दाव है तोमार चरण धूलाय तले सकल अहंकार आमाय डुबाओ चोखेर जले आमार माथा न तो कोरे दाव है तोमार चरण धूलाय तले। तो दूसरी ओर कवि अपनी कविताओं के माध्यम से इस देश के लोगों को आह्वान करते हैं, आह्वान ही नहीं चेतावनी देते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता सामाजिक समानता से संबंधित इस कविता में हे मोर दुर्भागा देश में कवि ने पूरे देश की वास्तविक स्थिति को प्रकट किया है, और यही नहीं अपने देशवासियों को चेतावनी दिया है कि इस विषमता को दूर करो। मैं मूल बांग्ला में इस कविता का पाठ करूंगा और उसके बाद हिंदी में। हे मोर दुर्भागा देश, हे मोर दुर्भागा देश, যাদের করেছে অপমান অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করে যাবে সম্মুখে দাঁড়ায় রেখে তবু কোলে দাও নাই আস্থান। অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। মানুষের পরশের প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে। इस कविता का हिंदी अनुवाद इस रूप में है, हे मेरे अभागे देश, हे मेरे अभागे देश, तूने जिनका अपमान किया था उसके साथ तुम्हें भी अपमानित होना होगा। जिनके मानवीय अधिकारियों की अवज्ञा की थी, जिन्हें सामने खड़ा रखकर साथ बैठने का मान नहीं दिया था, उनके साथ तुम्हें भी अपमानित होना होगा। मनुष्य को स्पर्श के योग्य ना समझ तूने मनुष्य में स्थित देवता का अपमान किया है। विधाता के क्षोभ भरे दुष्काल द्वार पर बैठ तुझे सबके साथ अन्न पानी का भाग होना पड़ेगा, उनके साथ तुझे भी अपमानित होना पड़ेगा। यह कविता, इस कविता का अंग्रेजी अनुवाद बसंत कुमार राय ने किया था, और 5 अगस्त 1933 को गांधी जी ने इसे अपनी पत्रिका में प्रकाशित किया था। द ग्रेट इक्वालिटी के नाम से इस कविता का पाठ मैं करूंगा। द ग्रेट इक्वालिटी, प्राउड craftsman of my unfortunate country, throw aside your pride of caste list on your own unwilling head. Should we heap the burning insult that you now shower on others? You have deprived the outcast of the common right of man with your very eyes. You have behind their misery, and yet have you refused to take them to your heart. But remember, please do remember, someday you shall have to the equal of them all in ignominy. By contemptuously shunning the ouch of your fellow man, you have insulted the Lord of creation.
and is punishment from on high. You shall have to share their crumbs and time of famine and starvation. By remember, please do remember, someday you shall have to equal up them all in ignominy. You have your own power when you pushed aside your brothers and trampled them under your feet. But you never can be saved until you have full upset yourself. The three state of inglorious existence. But remember, please do remember, someday you shall have to be the equal of them all in ignominy. कभी सत्य की राह पर किसी के साथ न होने पर भी वह आह्वान करता है और गा उठता है, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। Thank you, Professor Shatrugna Kumar, very much for your recitation of a very socially relevant poem. Incidentally, Tagore had long-standing associations with Northeast India, about which Sri Prayag Shukla has already talked about. Rabindranath was instrumental in promoting the Manipuri dance, which is today recognized as one of the classical dances of India. His famous romantic novel Sheshar Kobita was based at Shillong, incidentally near our very first regional center there. His juvenile writing, the novel Rajarshi, is based at the outskirts of Agartala in Tripura. He stayed at several places in Northeast, such as Shillong and Agartala, and also in the Darjeeling districts. We now go over to Guwahati to listen to Ms. Namrata Haqjair, who will be talking about the Northeast links of Rabindranath Tagore. I'm going to talk on, as Dr. Guha has said, on the close relationship which Rabindranath Tagore had with the Northeast. During Rabindranath Tagore's lifetime, the Northeast was geographically divided into four parts. That is, the native state of Tripura, the native state of Manipur, the Northeast Frontier Agency, which is now known as Arunachal Pradesh, and the province of Assam, which then included present Assam, Mizoram, Nagaland, and Meghalaya. Now, various places, events, and persons in the Northeast have inspired Tagore to write some of his famous works. Dr. Guha has already mentioned about Sheshar Kobita and Rajarshi. Two others were Visarjan and Chitrangada. In 1833, when Tagore was around 22 years of age and not yet well known as a writer, rather he was criticized by many in his own state in Bengal, the then king of Tripura, Birchandra Manikya, honored him. The king had found expression of a personal grief in Tagore's poem Bhagno Hridoy, that is the broken heart, and had decided to honor him. Tagore was overwhelmed, but he accepted and went to Tripura as a guest of honor. The formal relationship developed into friendship and lasted for 4 generations, from Birchandra to his great-grandson. All of them patronized Tagore by funding his educational ventures in Shantiniketan and also his tours in the country and abroad. Many times he was taken in their personal tours also. Generations of members of the royalty and aristocracy of Agartala and Tripura went to Shantiniketan to study and learn the fine arts there. On May 14, 1941, at the age of 80, when Tagore accepted the title of Bharat Bhaskar from the great-grandson of Birchandra Manikya, Tagore recalled that Birchandra Manikya had foreseen his future genius at that time when he himself was not sure of his skills as a writer. He said, "I was then young in age, my writings were few and were mostly rated as puerile by critics." In Agartala, Tagore saw a performance of the Manipuri dance and introduced it in Shantiniketan in the fine arts course. He encouraged the ladies of the royalty and the aristocracy of Tripura to spend their time fruitfully in learning the fine arts. Birchandra Manikya's
daughter, Ananga Mohini Devi, was a poet, and Tagore praised the simple and natural style of her poetry. The hospitality extended to Tagore by the royal family of Tripura was not confined to Tripura. It was extended to their summer residence known as Tripura Castle in Shillong. A table used by Tagore is still preserved in the residence, which has now been converted into a heritage hotel in Risa Colony. In Shillong, Tagore stayed at other residences also, the most prominent being the Brookside, where he started writing the Shesher Kovita. The Guwahati edition of the Times of India states today that this bungalow is on the zigzag road in Rilbong and is on the cusp of a woody grove encircled on three sides by the deep gorges of the Umshirpi stream. The room in which he stayed has been preserved with the bedstead and other furniture. Not far from Brookside is the Jeet Bhumi, where he wrote one of his most outstanding drama, Rokto Korobi. He also stayed in Sidley House in Upland Road, Laitumkra, which is on the hill a few meters higher to the Bijni complex of the Nehu campus, where the 1801 Study Center of Shillong is located. What Tagore felt after seeing and being in Shillong has been expressed mostly in Shillonger Chithi, that is, letter of Shillong. It is not known whether any person or event or place in Assam is the basis of Tagore's literary works, but Tagore was related to Assam through matrimonial alliances. A niece of Tagore by the name Pragya Sundari Devi was married to Sri Lakshminath Bezbarua in 1892. At that time, Tagore himself did not have much knowledge of Assam, and there was much misgiving in the Tagore household over this alliance. Decades later, in the 20th century, another marital alliance took place. This time, the niece got married to Professor Gunabhiram Barua, the first Assamese principal of the premier institution, Cotton College in Guwahati. The name of that niece is not very well known. She is more well known as the maternal grandmother of Sharmila Tagore, the actress of the Bombay film industry. Tagore's journeys in the Northeast and incidents which have left an impression on others or inspired him to muse and write is a subject which would be an interesting one. I conclude with pride that one of the strongest female personality depicted in his writings is Chitrangada, the Manipuri princess who lost her heart to Arjun but did not follow him when he left her and their child. I would like to conclude by mentioning the famous lines from Chitrangada, where Chitrangada mentions, this is the translation, I am Chitrangada, not a goddess, nor am I an ordinary woman. I do not crave to be worshipped, but neither should I be ignored. If you make me your companion in your journey, especially during times of crisis, and share with me your difficulties, if you make me your helpmate in your difficulties, then will you know me as I am. Now from one part of the northeast to another part, that is Agartala, where Srimati Seema Ghosh and Srimati Shukla Bhattacharya will sing a duet from Bhanu Singher Padabali. Tagore's songs had a wide variety and he used the pseudonym Bhanu Singha for writing several songs in the Braj Bhasha. Savan Gagane Ghor Ghan Ghata और गहन कुसुम कुंज माझे और Sajani Sajani Radhikaye, etc. Now over to Agartala for one such number. शामन गगने घोर घन घटा निशीथयामिनी शामन गगने घोर घन घटा कुंज पते सखी कैसे जाब अबला कामिनी रे शामन गगने घोर घन घटा उन्माद
घटा Thank you very much, Srimati Ghosh. And कहल कुसुम कुंजमान गीतुल मधुर वंशीवाद विसर दास लोकराज सजनिया आओ लो गहन कुसुम कुंजमान 3000 नीलमास हृदय प्रणय कुसुम रास 3000 नीलमास हृदय प्रणय कुसुम रास हरिण नेत्र विमल हास कुंज वन में आओ गहन कुसुम कुंजमान धाने कुसुम सुर भगार धाने बेहद सुर बसार धाने इंदु अमृत धार विमल रजत भाति रे मंद मंद भृंग गुंज अजुत कुसुम कुंज कुंज मंद मंद भृंग गुंज अजुत कुसुम कुंज कुंज कुशल सजनी पुंज पुंज गोकुल ज्योति जाति रे गहन कुसुम कुंजमान देखल सखी श्यामराय नयने प्रेम उथल जाय मधुर बदन अमृत सदन चंद्रमाय निंदिते आओ आओ सजनी वृंद हे राम सखी श्री गोविंद आओ आओ सजनी वृंद हे राम सखी श्री गोविंद श्याम कांतारो बिंद भानु सिंह पंडित गहन कुसुम कुंजमान that was indeed mellifluous. Thank you very much, Srimati Ghosh and Bhattacharya. We have now come towards the end of our program, and I now request Professor Parak to say a few words and express his thanks. रविंद्र जयंती के इस अवसर पर यह एक कार्यक्रम मानविकी विद्यापीठ और रीजनल सर्विस डिवीजन के आपसी सहयोग से प्रस्तुत किया गया, जिसमें हमारे कई क्षेत्रीय केंद्र ने भी भाग लिया है। जो कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत हुआ और मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे महान कवि रविंद्र की इस जयंती के अवसर पर हम अपने विद्यार्थियों और अपने स्टाफ सदस्यों को एक ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकें जिसमें उनके साहित्य, उनके गीत और उनके विचारों से की कुछ झलक आप पा सकें। इस कार्य को सफल बनाने में एक व्यापक सहयोग की आवश्यकता थी। वो सहयोग हमें हर पक्ष से प्राप्त हुआ। सबसे पहले मैं अपने यहाँ उपस्थित इस दर्शक समुदाय का, जिसमें हमारे अध्यापक, हमारे एकेडमिक्स और हमारे नॉन एकेडमिक स्टाफ के सदस्य हैं जो स्टूडियो में उपस्थित हैं, मैं उनका आभारी हूँ कि काफ़ी व्यस्तताओं के बीच उन्होंने समय निकालकर और यहाँ उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान किया। मैं श्री प्रयाग शुक्ल का, जो हमारे आमंत्रण पर यहाँ आए और उन्होंने गीतांजलि के गीत भी हमें सुनाए और उसके साथ साथ उनके साहित्य और कला के बारे में और उनके जीवन के बारे में भी हमें बहुत सारी ऐसी जानकारी दी जो शायद हम में से बहुतों को पहले नहीं थी। मैं प्रयाग जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके अतिरिक्त मैं अपने उन क्षेत्रीय केंद्र पर उपस्थित उन सभी गायकों का और रविंद्र साहित्य के विद्वानों का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए और अपने गीतों द्वारा हम सबको प्रभावित किया। मैं EMPC के डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर और श्री अनिल सक्सेना विशेष रूप से, जिन्होंने यह बहुत ही सुंदर पैनल तैयार करने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, और यहाँ के पूरे स्टाफ का, श्री सुनील दास का जो सीनियर प्रोड्यूसर है हमारे यहाँ, और अन्य सदस्यों का भी आभारी हूँ जिनके सहयोग के बिना यह
इतने सुचारू रूप में नहीं चल पाता। मैं मंच पर उपस्थित श्री शत्रुघ्न कुमार, श्री सी.के. घोष, डॉक्टर कानन शर्मा, डॉक्टर ए.एस. गुहा, इन सभी का भी आभारी हूँ जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत हुआ है और जिन्होंने रविंद्र साहित्य और रविंद्र के बारे में हमें बहुत कुछ बताया है। और डॉक्टर घोष से यह गुजारिश करता हूँ कि इस कार्यक्रम की समाप्ति रविंद्र के एक गीत के साथ हो। নিশিদিন আলোক শিখা জ্বলুক গানে, হে আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে। সারা রাত ফোটা তারা নব নব, আধারের গায়ে গায়ে পরশ তব। সারা রাত ফোটা তারা নব নব, নয়নের দৃষ্টি হতে বুঝবে কালো, যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো। নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো, যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো। ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্বপানে, হে আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে। এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ